Hello everyone, I am Shruti Pandey from the Department of Chemical Engineering at IIT Kanpur, and I welcome you all to the lecture 4 of the chapter Aldehydes, Ketones and Carboxylic Acids in Chemistry of Class 12th. Till now we had discussed the rules that need to be applied while you are naming the aldehydes and ketones in detail, and we had also done a lot of examples and exercises and also the reverse exercise. After that, we moved on to the structure of carbonyl group in detail. Like we talked about the geometry, we talked about the hybridization and the angle that its trigonal coplanar geometry is there. And we also talked about the sigma and the pi bonds. Then we started off with the preparation of aldehydes and ketones. So basically, we were dealing with the common ways of preparing aldehydes and ketones. And the first method that we discussed was using alcohols. Like how can we prepare aldehydes and ketones using alcohols? And there were two techniques. So today, I'll first give a short revision kind of thing for that first technique, and then we'll move on further. Let's start. So the preparation using alcohols. So as we discussed, there are two ways. First is the oxidation, and second one is the dehydrogenation. Dehydrogenation means D means removal, and hydrogenation dehydrogenation means removal of hydrogen atom. And opposite to that, there is also a word called dehydration. So dehydration means the removal of water molecule. So first of all, talking about the oxidation. Okay. It will be a quick revision. I am not going into the details. As I had already discussed those in the previous lecture. So this will be quick. 1 degree, 2 degree, 3 degree. Or you can also call them as primary, secondary and tertiary alcohol. So primary alcohols mean if you are using the strong oxidizing agent. For example, you may use acidified KMnO4. It is a very strong oxidizing agent. So what will happen? Because it is strong, so the reaction hai, it will start. Like primary alcohol की बात हो रही है सिर्फ यहाँ पे. So the reaction will start. First, it will form aldehyde, and it will not stop at the aldehyde. It will the reaction will carry on, and the final product will be the carboxylic acid. Okay. So using the strong oxidizing agent, there is no way of stopping the reaction at aldehyde. इस वजह से हमेशा if you are using the primary alcohol and a strong oxidizing agent, you will always get a carboxylic acid. Now, second option is you can use any of the mild oxidizing agents. Here I am also giving you the examples. CrO3 is anhydrous medium. Okay, CrO3 is chromium trioxide in anhydrous medium. And the second mild oxidizing agent that you can use is PCC. PCC ka full form is pyridinium chlorochromate. I had written it. So these are the mild oxidizing agents, and when these are acted, these are used with the primary alcohol, what we get is the aldehyde. ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल के साथ कभी भी हमें किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में कीटोन नहीं मिलेगा कभी भी. नाउ कमिंग टू द सेकेंडरी अल्कोहल. सेकेंडरी अल्कोहल में द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट वी यूज इज क्रोमिक एनहाइड्राइड. इसको फॉर्मूले में CrO3 भी बोलते हैं. एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स विल ऑलवेज गिव अस कीटोन्स ऑन ऑक्सीडेशन. ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल हमें कभी भी एल्डिहाइड या फिर एसिड नहीं देंगे. Now, tertiary alcohols, they generally no oxidation is there. Like aldehydes and ketones are not formed when you react tertiary alcohol with any of the oxidizing agent. ठीक है, the reason is because जो alpha carbon होता है, as I told you, कि alpha carbon is attached to three other carbon atoms. ठीक है, और कार्बोनिल ग्रुप फॉर्म होने के लिए आपको डबल बॉन्ड ऑक्सीजन चाहिए होता है. तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता, वो क्लीवेज कार्बन का क्लीवेज नहीं हो पाता है. एंड दैट इज वाई हमें एल्डिहाइड और कीटोन नहीं मिलता है. लेकिन इफ वी रिएक्ट द टर्शियरी अल्कोहल विद any of the strong oxidizing agent and extreme condition मतलब high temperature, so what we will get is we will get a mixture of carboxylic acids.
ठीक है, और ये मिक्सचर क्यों बनता है? बिकॉज ऑफ द क्लीवेज ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड। ठीक है, वो क्लीवेज कैसा भी हो सकता है, बहुत रैंडम होता है। तो किसी मॉलिक्यूल में सपोज करिए बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, तो एक मॉलिक्यूल में कोई एक पर्टिकुलर सीसी बॉन्ड टूट जाएगा, दूसरे मॉलिक्यूल में कोई और सीसी बॉन्ड टूट जाएगा। तो इस तरीके से रैंडमली कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ऑक्सीडाइज होकर बन जाता है। एंड जनरली दिस मेथड इज नॉट यूज, क्योंकि इफ वी वांट अ पर्टिकुलर कार्बोक्सिलिक एसिड, देन फिर इस मिक्सचर को सेपरेट करने में भी हमें आगे और भी रिएक्शंस लगेंगे। सो दैट इज व्हाई दिस technique is generally not used even for the preparation of carboxylic acids. Now, coming to the dehydrogenation, I am writing it just below this only. So, in the case of dehydrogenation of alcohols, what you use is we simply pass the vapors of alcohol over the heated copper, and that too at a specified temperature, 573 Kelvin. At 573 Kelvin. ठीक है, तो अगेन इसमें भी अलग अलग होगा। प्राइमरी अल्कोहल विल ऑलवेज गिव एल्डिहाइड, क्योंकि वो कीटोन कभी नहीं बना सकता बिकॉज इट हैज 2 अल्फा हाइड्रोजन्स। सेकेंडरी विल as usual give the ketones. Now again, tertiary में, as I told you in the case of oxidation, tertiary directly tertiary alcohol they can never give aldehyde and ketone directly. ठीक है, तो the same case is here also. Tertiary alcohols, when they are reacted with this heated copper at 573 Kelvin, तो they give a mixture of alkenes. और होता क्या है? हाइड्रेशन, सॉरी dehydration. Dehydration, as I told you, is the removal of water molecule minus H2O. ठीक है, और product क्या होगा? It will be generally the mixture of alkenes. ठीक है, so this was all about the preparation using alcohols. Now we come on to the next technique. This is also a common way of preparation of aldehydes and ketones, but using the hydrocarbons. Now, as you know, hydrocarbons are of 3 types. The aliphatic hydrocarbons are of 3 types. The alkenes, alkenes and alkynes. ठीक है, और alkane से we cannot get alcohol directly, लेकिन alkenes और alkynes because they are unsaturated compounds. Unsaturated because alkenes में double bond होता है और alkynes में triple bond होता है। तो इस unsaturation की वजह से you can react them with the different compounds and then you can form different products. ठीक है, तो hydrocarbons को यूज करके भी there are 2 techniques. ठीक है, जैसे अल्कोहल्स के केस में था 2 टेक्निक, वैसे यहाँ पे भी we have 2 techniques. Preparation using hydrocarbon. ठीक है, the first one is using the alkenes. So alkenes is, and the second one is using alkynes, मतलब triple bond. So first we will talk about the first one, and that is the ozonolysis of alkenes. Ozonolysis of alkenes. ठीक है, तो the general technique is when you react alkenes with ozone. Ozonolysis मतलब you are reacting something with ozone. What is ozone? Ozone is O3 molecule. So when you react alkene with ozone, you will get an ozonide. Maybe you must have heard this word first time, but I'll draw the structure. It is not as difficult as it seems. And then when you react this ozonide with zinc dust and water in the presence of water, then you can get a mixture of aldehydes or ketones depending upon the structure of that alkene. ठीक है, कुछ भी मिल सकता है, aldehyde भी और ketone भी. So this was the general procedure जो कि alkenes में होता है in the case of ozonolysis. अच्छा, one important application of this procedure is because it is useful for detecting the position of the double bond in the alkene. क्यों? क्योंकि इस प्रोसीजर में क्या होता है कि जहाँ पे भी डबल बॉन्ड होता है ना, वहीं से कार्बन का क्लीवेज हो जाता है, and we are able to get 2 molecules with a less number of carbon atoms as compared to the carbon atoms of the reactant. तो अभी when we'll do some examples ना, then you will be able to understand it properly. Okay, so
first time we start with a simple example. This is simply propene. We have 3 carbon atoms over here plus ozone which is O3. क्या मिलेगा? ओजोनाइड. सो ओजोनाइड कैसे बनता है? यू कैन विजुअलाइज इट एज ये जो डबल बॉन्ड है दोनों कार्बन के बीच में, इट विल ब्रेक डाउन एंड इन्हीं दोनों कार्बन, दीज 2 कार्बन विच आर पार्ट ऑफ दैट डबल बॉन्ड, दीज आर ओनली द पार्ट ऑफ दैट ओजोनाइड. ठीक है, तो हमेशा डबल बॉन्ड टूट के ही ओजोनाइड बनता है. तो नाउ द ओजोनाइड स्ट्रक्चर वुड बी सिंपल. बस आपको क्या करना है, ये डबल बॉन्ड हटा देना है बीच में से एंड यू हैव टू ड्रॉ अ स्ट्रक्चर लाइक दिस स्ट्रक्चर लाइक अ हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर. ठीक है, तो बस दोनों डबल बॉन्ड जो भी 2 कार्बन के बीच में है डबल बॉन्ड वो हटा के यू हैव टू ड्रॉ दिस हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर with 3 oxygen atoms. ये जो ओजोन में 3 ऑक्सीजन एटम्स are there, so you have to add these 3 oxygen atoms in a heart shaped structure. So this is basically an ozonide. इसको बोलते हैं प्रोपीन because ये प्रोपीन से बना है. So प्रोपीन ओजोनाइड. ठीक है, and after that when you react this with zinc dust in the presence of water, what you get is the 2 products. Now ये 2 products बनेंगे कैसे? सेम चीज हो रही है, जैसे यहाँ पे क्लीवेज हुआ था सीसी बॉन्ड का, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी क्लीवेज होगा, बट एज यू कैन सी 2 प्रोडक्ट बन जाएंगे क्योंकि यहाँ का जो सीसी बॉन्ड है वो तो ऑलरेडी ब्रेकेज हो ही चुका है. ठीक है, तो एक कंपाउंड यहाँ से बनेगा और दूसरा कंपाउंड यहाँ से क्या बनेगा, CH3CHO प्लस HCHO. ठीक है, वी विल गेट 2 aldehydes. ठीक है, सो जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ विजुअलाइजेशन आई एम शोइंग यू कि क्लीवेज कहाँ हो रहा है. ठीक है, तो एक कंपाउंड, क्योंकि देखो ये यहाँ बीच में जो सीसी बॉन्ड था वो ऑलरेडी टूट चुका है, अब क्या बनेगा, यहाँ से ये वाला कंपाउंड आ जाएगा और एक ये कंपाउंड आ जाएगा. ठीक है, सो एज यू कैन सी इन दोनों में फर्स्ट वाले में देयर आर 2 कार्बन एटम्स, इस वजह से यू आर गेटिंग एन एल्डिहाइड विद 2 कार्बन एटम्स, एंड सेकंड वाले में यू हैव 1 कार्बन एटम, सो द सेकंड प्रोडक्ट इज सिंपली फॉर्मल्डिहाइड एंड द अदर वन इज द एसिटाल्डिहाइड. ठीक है, तो ये क्लीवेज ऐसे हो रहा है. ओके, सो दिस इज हाउ वी गॉट 2 काइंड्स ऑफ एल्डिहाइड, और ये दोनों ही एल्डिहाइड हैव लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एज कंपेयर टू द ओरिजिनल एल्कीन. ठीक है, तो अच्छा, हाउ कैन वी गेट द कीटोन्स? We will see another example. Okay, this is a double bond. Okay, when you are reacting it with ozone, similarly वही होगा जो ऊपर हुआ था, ये double bond जो है इसका cleavage होगा and you will get these 2 carbon atoms which are participating in the double bond. They will only participate in the ozonide formation. ठीक है, बाकी का जो भी structure है, ये सिंपल एल्कीन है, even if you get complicated alkene, बाकी के structure में कुछ भी change नहीं होगा. ठीक है, इट विल रिमेन एज इट इज एंड ओनली द डबल बॉन्ड पोर्शन विल चेंज. ठीक है, ये डबल बॉन्ड आपको नहीं बनाना है, राइट द एटम्स एज इट इज एंड क्रिएट अ हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर एज आई टोल्ड यू. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ओजोनाइड. नाउ अगेन व्हेन यू रिएक्ट दिस विद जिंक डस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, मैं यहाँ पे भी आई विल आल्सो इंडिकेट इट विद द रेड. ठीक है, तो यहाँ पे भी क्लीवेज मतलब जो मॉलिक्यूल्स बनेंगे वो इसी तरीके से बनेंगे, एक ये और दूसरा ये. ठीक है, नाउ अगर आप पहले वाला सर्कल देखो, रेड सर्कल, तो इसमें क्या है, एक कार्बन है, इट इज अटैच्ड टू 2 मोर कार्बन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन, है ना, यही वाला है स्ट्रक्चर. ठीक है, तो इसमें कोई और सीसी बॉन्ड का क्लीवेज होता ही नहीं है, सो दैट इज व्हाई दिस प्रोडक्ट विल फॉर्म अ कीटोन. व्हाई? बिकॉज दिस कार्बन जिसमें कि ओजोनाइड बना हुआ है दैट इज अटैच्ड टू 2 मोर कार्बन एटम्स, तो वो एल्डिहाइड बना ही नहीं सकता, है ना. ऊपर वाले केस में क्या था कि जहां पे क्लीवेज हो रहा है, दिस कार्बन, ये वाला कार्बन इज अटैच्ड टू ओनली 1 कार्बन एटम, इसी वजह से वो एल्डिहाइड बनाता है. सो हियर वी विल गेट अ सिंपल कीटोन, और ये जो सिंगल बॉन्ड O है दैट विल बिकम द कार्बोनल ग्रुप, दैट इज C डबल बॉन्ड O, दिस विल बी अ कीटोन. प्लस जो अदर वाला है उसमें आप देखो सिर्फ एक कार्बन एटम है एंड दैट टू
So that is why it will form a aldehyde, HCHO. ये सिमिलर है जो ऊपर था फर्स्ट एग्जाम्पल में. So in the first example we get a mixture of aldehyde, and in the second example we have got a ketone and an aldehyde both. ठीक है, तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि क्या बनेगा प्रोडक्ट में. इट सिंपली डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपीन दैट वी आर द स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन दैट वी आर यूजिंग. बस आपको ये ध्यान रखना है कि क्लीवेज कहाँ से हो रहा है, वो जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ पे है और क्लीवेज किस तरीके से हो रहा है. सो यू विल बी एबल टू फॉर्म द प्रोडक्ट. So this was about the ozonolysis of alkenes. Now coming to the alkynes. So that is the hydration of alkynes. So the second method by which we can prepare aldehydes and ketones using hydrocarbons is hydration of alkynes. Okay. So first of all, I would like to tell you that alkynes are immiscible in water and they do not react with the water. ठीक है, अगर आप नॉर्मल किसी भी अल्काइन को इफ यू सिंपली मिक्स इट इन वाटर नो देयर विल बी नो रिएक्शन. ठीक है, तो रिएक्शन करवाने के लिए वी नीड टू ऐड सम स्पेशल रिएजेंट एंड दैट वी आर यूजिंग आर दो स्पेशल रिएजेंट दैट वी यूज फॉर द हाइड्रेशन पर्पस इज मर्क्यूरिक सल्फेट. दिस यू नीड टू रिमेम्बर. ठीक है, इसको याद ही करना पड़ेगा. There is no technique you can just. Mercuric sulfate is HgSO4 plus dilute sulfuric acid. ठीक है, so the second one is dilute H2SO4. ठीक है, ये दो अलग अलग नहीं है. These are like you have to add them both together into the alkynes. Only then the reaction will happen, and that too at the temperature of 333 केल्विन. ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन आपको मीट करवानी पड़ेगी. ओनली देन द फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन विल टेक प्लेस. ये तीनों चीजें HgSO4 डाइल्यूट H2SO4 एट 333 केल्विन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन यू द मैकेनिज्म. बहुत डिटेल में नहीं, मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं है. First of all, I would like to tell you that this is an addition reaction. Addition मतलब कि जिस भी reagent से आप alkyne का reaction करवाते हो, ठीक है, that will break down into two parts, and both these parts they will add to the two different carbon atoms which are taking place in the triple bond formation. ठीक है, तो ये simply addition reaction होता है. And here यहाँ पे हम addition किसका करवा रहे हैं? Water का. ठीक है. So I will first write down the general reaction. ठीक है, जो किसी भी general alkyne के लिए applicable है. And our reagent is HZ. ठीक है, H is by because I am writing it because it will give H plus and Z will give Z minus. Like when it will break down, it will give H plus and Z minus. ठीक है, in the presence of dilute acid. तो क्या होगा? पहले H प्लस जाएगा एंड इट विल सिंपली ऐड टू दीज टू कार्बन एटम्स. ठीक है, जो कि ट्रिपल बॉन्ड का पार्ट है उनमें ऐड हो जाएगा. एंड द रिजल्टिंग मॉलिक्यूल विल हैव ओनली अ डबल बॉन्ड. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल न्यूट्रल कंपाउंड नहीं है. ठीक है, ये कार्बोकैटायन है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन के ऊपर में यू कैन सी अ पॉजिटिव चार्ज ओवर हियर. तो ये एक कैटायन है और क्योंकि ये डबल बॉन्ड है सो दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज विनाइलिक कैटायन. ठीक है, और इसके साथ में Z माइनस इज द प्रोडक्ट. ठीक है, नाउ इन द सेकेंड स्टेप, अभी फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ है कि दिस HZ हैज ब्रोकन डाउन इनटू H प्लस एंड Z माइनस. अभी फर्स्ट स्टेप में H प्लस हैज बीन एडेड टू these two carbon atoms, and in the second step Z minus will add to these carbon atoms. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, H has already added because Z has a negative charge, so it will attack the carbon जिसमें की positive charge है ना. तभी तो positive और negative का reaction होता है. This Z has a negative charge, so it will attack this carbon atom with a positive charge. And ये जो है ये हमारा final product है. ठीक है, so ये this was the general mechanism for any kind of alkyne.
Now it seems simple over here. Like if I talk, like if I give you one example of a simplest alkyne, which is ethine. I'm writing water as HOH just to show you that it has the same structure as HZ that we just discussed in the general mechanism. वो same structure है, only that is the reason I am drawing it like that. और हमारे reagent क्या है? Hg2+. This is for Hg2+ is coming from mercury sulfate, ठीक है? और H+ मतलब dilute sulfuric acid. तो अकॉर्डिंग टू दिस मैकेनिज्म जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? दिस इज द प्रोडक्ट, ठीक है? और ये जो स्पेशल रिएजेंट्स हैं इनका एक जो यूज होता है दैट इज दे ऑल्सो कैरी आउट द आइसोमराइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट विच इज फॉर्म, ठीक है? एडिशन तो नॉर्मल एडिशन ऑफ वाटर हो रहा है, ठीक है, वो तो जनरल मैकेनिज्म में हो ही रहा है, लेकिन ये जो स्पेशल रिएजेंट है दे ऑल्सो कैरी आउट द आइसोमराइजेशन. आइसोमराइजेशन मतलब what are isomers? Isomers are just the molecules or the compounds which have the same type of atoms and the same number of atoms. Only the arrangement of those atoms is different. मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सारे नंबर में उतने ही रहेंगे, ओनली द अरेंजमेंट विल चेंज, ठीक है? तो क्या हो जाएगा फाइनल प्रोडक्ट आफ्टर आइसोमराइजेशन? दिस इज इथेनॉल और यू मे कॉल इट एज एसिटाल्डिहाइड, ठीक है? So this is the final product जो कि we have got. Now this was the case for the simplest alkyne, which is ethine. Why I told you that this thing is not as simple as it seems, because suppose करो we are taking some other alkyne, ठीक है, some other alkyne this, और हमने यहाँ पे एडिशन रिएक्शन करवाया, ठीक है? तो नाउ ऑब्वियसली यू नो कि ये 2 कार्बन एटम्स है हमारे पास, ठीक है, जहां पे एडिशन होगा, लेकिन यू हैव H एंड OH. नाउ द क्वेश्चन विल अराइज कि H कहाँ पे ऐड होगा और OH कहाँ पे ऐड होगा. मतलब यू हैव 2 ऑप्शंस ऑफ कार्बन एटम्स, दोनों अलग अलग एटम्स आ रहे हैं आपके पास. H+ आ रहा है और OH- आ रहा है इन द आयन फॉर्म, ठीक है? तो ये दोनों अटैच तो होंगे, बट कौन से कार्बन पे कौन सा आयन अटैच होगा या फिर ऐड होगा, ठीक है? सो दिस इज द रीजन दिस इज नॉट एज सिंपल एंड वी इवन नीड टू गो इट इनटू द फर्दर डिटेल्स ऑफ दिस विनाइलिक कैटायन दैट इज बीइंग फॉर्म्ड इन द मैकेनिज्म, ठीक है? तो सो सी द प्रोडक्ट जो होता है ना, इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ द विनाइलिक कैटायन एंड दैट स्टेबिलिटी इज गवर्नड like you must have, when you were studying about the carbocations in the previous units, you must be knowing the stability of carbocations होता है वो कैसे होता है? 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री इन दिस ऑर्डर. अच्छा, यहाँ पे भी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज दैट कार्बोकेटाइन जिसमें कि जिस द कार्बन विच इज कैरिंग द पॉजिटिव चार्ज इट इज अटैच्ड टू 3 अदर कार्बन एटम्स. मतलब इफ आई ड्रॉ द स्ट्रक्चर, ठीक है, तो 3 डिग्री क्या होगा कि सपोज करो ये आपका है जिसमें कि प्लस चार्ज है, ठीक है? तो दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, अगर कार्बोकेटाइन इज अटैच्ड टू 3 अदर कार्बन एटम्स देन इट इज 3 डिग्री. 2 डिग्री में स्ट्रक्चर कैसा होगा? इफ इट इज अटैच्ड टू ओनली 2 कार्बन एटम्स और 1 हाइड्रोजन होगा, ठीक है? कार्बोकेटाइन में यू कैन ओनली हैव 3 बॉन्ड्स क्योंकि एक में पॉजिटिव चार्ज है. और सिमिलरली 1 डिग्री में क्या होगा? यू विल हैव दिस कार्बोकेटाइन इज ओनली अटैच्ड टू 1 कार्बन एटम एंड 2 अदर हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है? सो दीज आर द जनरल स्ट्रक्चर्स फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोकेटाइन. अब द स्टेबिलिटी लाइक द टर्शियरी कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल, मतलब जितने कार्बन एटम से हमारा C+ अटैच्ड होगा उतना ज्यादा स्टेबल वो स्ट्रक्चर होगा एज अ होल, ठीक है? तो इन दिस केस ऑल्सो विनाइलिक कैटायन में अगर आप देखो जो स्ट्रक्चर है, ये हमारा कार्बोकेटाइन है यहाँ पे, ठीक है? तो ये मतलब जब जैसे ये वाला केस हमने लिया, यहाँ पे प्रोपाइन है हमारा, ये जो सेकंड एग्जांपल में वी वर टॉकिंग अबाउट दिस मॉलिक्यूल, दिस इज प्रोपाइन, राइट? अब इसमें ये दोनों कार्बन है, तो यहाँ पे या तो इस वाले पे प्लस आएगा और या तो इस वाले पे प्लस आएगा, ठीक है? दीज ओनली 2 केसेस आर पॉसिबल, राइट? तो
तो अब हमें ये जज करना है कि कौन सा वाला कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, और वही बनेगा, वही फॉर्म होता है। ठीक है, तो एज यू कैन सी कि दिस ये द आई एम जस्ट नेमिंग इट, दिस इज द फर्स्ट कार्बन, दिस इज द सेकंड कार्बन। ठीक है, तो फर्स्ट वाला कार्बोकेटाइन जो है, इफ इट इज फॉर्मिंग देन इट इज अटैच्ड टू ओनली वन कार्बन एटम, और जो दूसरा वाला कार्बोकेटाइन है that is not sorry, the first one is attached to two carbon atoms, one this and one this, and the second वाला कार्बोकेटाइन is only attached to one carbon। इसका मतलब फर्स्ट वाला कार्बोकेटाइन is more stable। अगर हम इस थ्योरी से जाएं, ये जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन वाला रिजल्ट है, ठीक है, if we go by this then obviously the first this the कार्बोकेटाइन which is numbered first it will be more stable। इसी वजह से यही वाला फॉर्म होगा और यहीं पे आके OH लगेगा। ठीक है, ओके, अच्छा, दिस वाज द एक्सप्लेनेशन, दिस वाज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड कि कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा और कहाँ पे OH और H लगेगा। तो द अ ट्रिक दैट यू कैन यूज इज द Markovnikov's rule। ठीक है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल। आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड इट इन योर प्रीवियस क्लासेस आल्सो बिकॉज इट इज यूज्ड एवरीवेयर। दिस इज Markovnikov's rule एंड व्हाट इट सेज is कि जो like whenever addition reaction is happening, so the hydrogen will only get attached to the carbon which has more number of hydrogens, and the other group will get attached to the carbon which has less number of hydrogens। ठीक है, तो okay, I'll write this down in short form। मतलब एडिशन के केस में ये हमेशा तभी अप्लाई होता है जब एडिशन रिएक्शन हो रहे होते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन will be attached to the carbon with already more hydrogen। ठीक है, और जो भी अदर हमारा ग्रुप होगा, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, डिपेंड्स कि हम किससे रिएक्शन करवा रहे हैं। it will get attached to the carbon with less number of hydrogen। ठीक है, तो if you apply this rule तो दिस एल्कीन, दिस प्रोपाइन एटम, प्रोपाइन मॉलिक्यूल, तो कैसे लगेगा? बिकॉज यू कैन सी कि जो नंबर 1 वाला कार्बन है इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, 0 हाइड्रोजन, और जो नंबर 2 वाला कार्बन है इट हैज 1 हाइड्रोजन। ठीक है, तो किसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है? 2 वाले के पास। सो दैट इज वाई हाइड्रोजन विल गेट अटैच टू द सेकेंड वाला कार्बन एंड द अदर मॉलिक्यूल, जो हमारे केस में OH है, अदर ग्रुप is OH that will get attached to the first carbon। ठीक है, तो दोनों से ही if we apply the concept of the stability of the carbocation, उससे भी we are getting the same result जैसे कि हमें Markovnikov's rule से मिला। ठीक है, so both the things are same, it simply depends on you कि आपको क्या अप्लाई करना है। ठीक है, so this was the detail of this reaction। Now we will do this example। ठीक है, सो आई एम इरेजिंग ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको लाइक इफ यू कीप ऑन जस्ट अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट्स तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, बट इफ यू आर इन द मिडल ऑफ एन एग्जामिनेशन एंड यू हैव टू सॉल्व अ क्वेश्चन देन आई वुड सजेस्ट यू सिंपली अप्लाई द Markovnikov's rule। दैट्स सिंपल टू लाइक यू कैन इजीली लर्न इट एंड यू कैन सिंपली अप्लाई इट एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, बट ऑब्वियसली यू नीड टू नो द कॉन्सेप्ट कि क्यों ऐसा हम रूल अप्लाई करते हैं। ठीक है, सॉरी, अब हमें बस वही करना है जो वी डिड इन द लाइक प्रीवियस रिएक्शन, जैसे Hg2 प्लस H प्लस एट 333 केल्विन। ठीक है, ये सिंपली एडिशन होगा, तो एक कार्बन पे H लगेगा और दूसरे कार्बन पे OH। ठीक है, वी नाउ डिस्कस्ड कि जो हमारा ये वाला कार्बन है इस पे OH लगेगा, अप्लाइंग द Markovnikov's rule। ठीक है, और इस पे हाइड्रोजन लगेगा। ठीक है, क्योंकि जिसमें हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वहीं पे हाइड्रोजन लग जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन फ्रेंड। ठीक है, सो यू कैन सिंपली लर्न इट एज हाइड्रोजन आर फ्रेंड्स ऑफ ईच अदर। सो सिंपली जहां पे एक हाइड्रोजन ऑलरेडी है वहां पे दूसरा हाइड्रोजन भी जाएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे भी आइसोमराइजेशन होगा। तो आइसोमराइजेशन में क्या होगा कि ये जो सिंगल बॉन्ड OH था, दिस हाइड्रोजन एटम विल कम ओवर हियर, और यहाँ पे डबल बॉन्ड
लग जाएगा, मतलब OH की जगह पे C डबल बॉन्ड O आ जाएगा एंड दिस 1H विल कम टू CH3। ठीक है, तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज प्रोपेनोन। ठीक है, सो see you can these the examples that I discuss are generally simple for you to understand. Exam में you can get any kind of, like even you can get the complex or very complicated alkyne, but see the concept will be same। ठीक है, बाकी पूरे स्ट्रक्चर में कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा। the only difference is जहाँ पे like the presence, the position of that double bond or a triple bond, बस वहीं पे आपको चेंजेस करने हैं। यू नीड टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट्स एंड सिंपली यू विल गेट द प्रोडक्ट। ठीक है, तो जब बाकी का जो स्ट्रक्चर है, बाकी का जो भी हमारा कंपाउंड है, वो दैट विल रिमेन एज इट इज। तो वन थिंग दैट यू कैन कंक्लूड फ्रॉम ऑल ऑफ दिस डिस्कशन इज कि यहाँ पे वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज मार्कोनिकॉव्स रूल। ठीक है, यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस थिंग। आप इसको याद कर लो बिकॉज ये काफी जगह अप्लाई होता है। ठीक है, तो यू शुड लर्न दिस एंड यू शुड अप्लाई दिस हियर। देन इफ यू आर यूजिंग इथाइन, ठीक है, in this technique you will always get the aldehyde। ठीक है, and if you are using any other compound other than ethyne, ठीक है, क्योंकि इथाइन में क्या है कि यू ओनली हैव 2 कार्बन एटम्स और उन्हीं के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, तो यू डोंट हैव मच चॉइस, तो वो एल्डिहाइड ही बनाता है। ठीक है, एंड इफ यू आर यूजिंग एनी अदर कंपाउंड अदर देन इथाइन, एनी अदर एल्काइन, देन यू विल गेट अ कीटोन। ठीक है, so these were the simple conclusions that we can get to। so this topic was a little bit conceptual। so till now what I did, I will now discuss a simple like you can say a summary kind of thing जितना भी हमने अभी तक preparation में cover up किया है। ठीक है, so what we did was we were discussing the common ways of preparation। ठीक है, तो if we talk about the common ways of preparation of aldehydes and ketones, so we divided into 2 parts। पहला था using alcohols and using hydrocarbons। ठीक है, now when we further discuss these in details, तो हम उन्हें further classify कर सकते हैं because alcohols में you did the oxidation part and in this again like there were different results for the cases of 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohol। ठीक है, 3 degree में we do not get aldehyde और ketone, but जो भी प्रोडक्ट आते हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए कि क्यों आते हैं और कौन से प्रोडक्ट आएंगे। ठीक है, and then we discuss the dehydrogenation। ठीक है, so in oxidation we used the oxidizing agent। ठीक है, स्ट्रॉन्ग में क्या होगा, माइल्ड में क्या होगा, ना दे विल गेट टू द डिफरेंट प्रोडक्ट्स। और डिहाइड्रोजनेशन में वी वर यूजिंग सिंपली द वेपर्स ऑफ द अल्कोहल पास्ड ओवर कॉपर, हीटेड कॉपर एट 573 केल्विन। ठीक है, और इसमें भी यू वर गेटिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। अगेन यू नीड टू नो कि टर्शरी अल्कोहल में आफ्टर डिहाइड्रेशन क्या प्रोडक्ट आते हैं। ठीक है, एल्कीन्स आते हैं। तो दिस वाज अबाउट द अल्कोहल्स। नाउ टुडे वी डिड अबाउट द सेम थिंग फॉर द हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स होता है जिसमें कि हम लोग क्या यूज करते हैं, ओजोन, एंड उसके बाद वी सिंपली रिएक्ट विद जिंक डस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये दोनों 1 2। नाउ द सेकेंड वन वाज द हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। एल्काइंस मतलब ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, और एल्केन्स में डबल बॉन्ड। ठीक है, तो दिस वी डिस्कस्ड इन अ लॉट ऑफ डिटेल। ऑल्सो वी डिस्कस्ड अबाउट द कंप्लीट मैकेनिज्म जो भी हो रहा है, कैसे कार्बोकेटाइन बन रहा है, एवरीथिंग, एंड अबाउट द मार्कोनिकॉव्स रूल। ठीक है, तो इसमें क्या यूज कर रहे हैं, हमारा रिएजेंट क्या है, इसमें पहले स्टेप में हो रहा है HgSO4
प्लस डाइल्यूट H2SO4 प्लस 333 केल्विन। ठीक है, ये सब एक साथ है। एंड सेकेंड स्टेप व्हाट इज हैपनिंग इज आइसोमराइजेशन। ठीक है, आइसोमराइजेशन को नहीं भूलना है, नहीं तो फिर एडिशन तो H और OH का ग्रुप्स का हो रहा है, राइट। यू आर सिंपली एडिंग दिस एडिशन ऑफ वाटर, राइट। ठीक है, तो आइसोमराइजेशन के बाद ही आपको अल्कोहल से एल्डिहाइड या फिर कीटोन मिलेगा। ठीक है, एंड इसमें द की पार्ट इज द मार्कोनिकॉफ्स रूल। ठीक है, वेन एवर आई एम राइटिंग द रिएजेंट्स इन दिस फॉर्म, मतलब 1 और 2, जैसे मैंने 1 और 2 लिखा हुआ है, ये वाला 1 ये वाला 2 है ना। so this means that the reagents that you are not adding the reagents with each other like together, you are simply adding them separately। मतलब पहले आपने ओजोन ऐड किया, फिर कुछ रिएक्शन हुआ, फिर उसके बाद आपने जिंक प्लस वाटर ऐड किया। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने HgSO4 प्लस डाइल्यूट H2SO4, इसका मतलब है यू आर एडिंग दीज रिएजेंट्स टुगेदर, एक साथ आप डाल रहे हो, उनको यूज कर रहे हो रिएक्शन में। So this was the crux of the common way. So basically we get four techniques of preparation of aldehydes and ketones. Okay. So after that we will now discuss the preparation of aldehydes separately. मतलब these are the ways जिससे कि सिर्फ aldehyde मिलते हैं, ketones नहीं मिलते। ठीक है, तो कुछ स्पेशल reactions होते हैं with the help of special reagent जिनसे कि you can only get aldehyde. So now we will discuss that. Preparation of aldehyde. So the first technique is using acyl chloride. We also call it as acid chloride। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? You have some compound RCOCl। ठीक है, तो whenever you have this structure, this is acyl chloride or acid chloride। ठीक है, so the reaction that we are going to discuss is known as a Rosenmund reduction। इसका नाम क्या होता है? Rosenmund reduction। ठीक है, बिकॉज उसमें रिडक्शन है तो यू कैन सिंपली सी कि हमें रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, रिडक्शन मतलब यू नीड टू यूज द रिड्यूसिंग एजेंट। सो व्हाट हैपेंस इज this is simply the hydrogenation of our acyl chloride over the catalyst। And what catalyst is used? So first of all I will write down the key points। hydrogenation, hydrogenation मतलब the reaction with hydrogen। ठीक है, और hydrogen is, as you all know, that hydrogen is a reducing agent, that is used as a reducing agent over a catalyst। तो hydrogenation हम जब भी करवाते हैं and you are using hydrogen, तो H2 के साथ में हमेशा catalyst होता है। ठीक है, without catalyst you cannot carry out the reaction। तो यहाँ पे हमारा catalyst है palladium in barium sulfate। ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, you have to simply learn this कि रोजनमंड रिडक्शन में कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है और क्या मतलब रिडक्शन हो रहा होता है, तो कैसे हो रहा होता है। ठीक है, सो हाइड्रोजन with palladium in barium sulfate, and the general reaction is RCOCl। ये हमारा अकाइल क्लोराइड है। and when you use these reagents, hydrogen with this catalyst, then you can simply get an aldehyde। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सेम स्ट्रक्चर में चाहे जितना भी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हो आपके पास, यू सिंपली हैव टू रिमूव द Cl एंड ऐड H। ठीक है, सिंपली आपको COCl की जगह पे CHO आ जाएगा, दैट्स इट। अच्छा, वन मोर थिंग, दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन द केस ऑफ बेंजीन। मतलब R जो है वो जरूरी नहीं है कि कोई एलिफैटिक चेन हो, इट कैन बी अ बेंजीन रिंग ऑल्सो। सपोज ये आपका कंपाउंड है जिसमें R की जगह पे दिस फिनाइल ग्रुप इज देयर। ठीक है, एंड यू आर यूजिंग द सेम रिएजेंट, so what you will get is CHO over here। and this compound I have repeatedly told you that this is known as benzaldehyde। और ये जो अकाइल क्लोराइड है, we had not discussed the IUPAC naming and all, but I am telling you this for information purpose। This is known as benzoyl chloride। We will discuss and we will be talking about the derivatives of carboxylic acids। So this reaction is simple, you just need to
You just need to know the reagent, whatever reagents are being used, and the special name of this रिएक्शन, क्योंकि ये चीज काफी बार एग्जाम्स में सिंपली स्पेशल नेम से ही पूछ ली जाती है. सो रोजनमंड रिडक्शन, कीप इन माइंड. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टेक्निक, दैट इज फ्रॉम द नाइट्राइल्स एंड ईस्टर्स. सो दिस इज द सेकंड वे. ठीक है, तो इसको हम लोग वी विल जस्ट सिंपली क्लासिफाई इट इनटू three other reactions, like 3 steps. The first kind of reaction in this technique is known as the Stephen reaction. This is also a special named reaction. ठीक है, सो आई विल राइट डाउन द जनरल रिएक्शन. ठीक है, इसके डिटेल्स में लाइक इसका जो पूरा मैकेनिज्म है दैट इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स. आई विल सिंपली राइट डाउन द जो जनरल रिएक्शन होता है, RCN. सो RCN इज द नाइट्राइल ग्रुप. दिस CN जो होता है उसको नाइट्राइल ग्रुप बोलते हैं, प्लस SnCl2. इसमें जो रिएजेंट्स यूज होते हैं, ठीक है, रिएक्टेंट इज RCN मतलब नाइट्राइल, रिएजेंट है stannous chloride. This is SN is for stannous Cl2 chloride. ठीक है, and the other reagent is in the presence of HCl. The reagents are we use SnCl2 in the presence of HCl. ठीक है, तो ये reaction is a two-step reaction. इसमें in the first step you simply get an imine NH. जो ये स्ट्रक्चर होता है वी कॉल इट एज आइमाइन, RCH डबल बॉन्ड NH. ठीक है, तो दिस इज सिंपली रिडक्शन हो रहा है. ठीक है, तो RCH डबल बॉन्ड NH, दिस इज नोन एज आइमाइन. एंड इन द सेकेंड स्टेप व्हाट वी डू इज द एसिडिक हाइड्रोलिसिस, मतलब और यू कैन जस्ट सिंपली राइट इट एज वाटर H+. ठीक है, तो H+ मीन्स एसिड है और वाटर मतलब हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं. So this is known as acidic hydrolysis, and then we get the final product as aldehyde RCHO. ठीक है, so you need not go into the details of the mechanism कि proper सारी चीजें कैसे हो रही हैं step by step. Generally you just need to know this much कि हमारा जो intermediate है that is imine in this reaction. The second reaction is using, now in this second reaction the reducing agent है वो क्या होता है, is a bit, the name is a bit complex. Reducing agent is, I am writing the name, diisobutyl aluminum hydride. ठीक है, इसको हम शॉर्ट में, because the name is so long, so generally लोग डिबाल H यूज करते हैं शॉर्ट फॉर्म, एज अ शॉर्ट फॉर्म. बट ऑब्वियसली यू नीड टू नो इट्स कंप्लीट नेम ऑल्सो, कि you know in the exams कोई भी like you can also get the short form as well as this complete name also. ठीक है, so you must be aware of both of these names. So the procedure is almost same as we did in the previous reaction. ठीक है, this is the formula for this Dibal H reducing agent. ठीक है, तो ऐसे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है. So this is aluminum, Al is for aluminum hydride, I is for iso. ठीक है, सो जैसे हम मेटा पैरा के लिए M और P यूज करते हैं, वैसे ही आइसो के लिए I यूज करें. सो दिस इज आइसोब्यूटाइल. इसमें भी हमारा जो इंटरमीडिएट होता है दैट इज आइमाइन. सेम अगेन इन द सेकेंड स्टेप यू डू द एसिडिक हाइड्रोलिसिस एंड यू फाइनली गेट एल्डिहाइड. इन द थर्ड रिएक्शन वी आर यूजिंग ईस्टर. ठीक है, ये तो हो गया नाइट्राइल. ये दोनों टेक्निक जो है दे आर यूजिंग नाइट्राइल as a reactant. Now we are using ester. Ester का structure कैसा होता है? If you are not aware, then it's R. It is also a derivative of carboxylic acid. ठीक है, RCOOR prime. ठीक है, these R and R prime they can either be similar or they can be different. Generally they are different. ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ester. ठीक है, इसमें भी you are using the same reducing agent, Dibal H, and in the second step you are again doing the hydrolysis. The final product is the aldehyde RCHO. ठीक है, so basically in this you need to keep in mind both these three forms, मतलब this Dibal H that is the short form, the complete name,
एंड दिस फॉर्मूला स्ट्रक्चर, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ALHIBU ट्वाइस, ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए, ठीक है. So this was the Dibalh is a very good reducing agent and it can directly convert the nitrile and ester to the aldehyde. ठीक है, ये कीटोन नहीं बना रहे हैं, ये सिर्फ एल्डिहाइड बना रहा है, ठीक है, तो ये चीज याद रखना. So these are the three ways using nitriles and esters and all these are the reduction reaction क्योंकि उसमें reducing agent use हो रहा है. So now the other techniques are also left, like using for the preparation of aldehyde. So for today it will be till here only. In the next lecture I will discuss the remaining techniques for the preparation of aldehyde and then we will directly move on to the preparation of ketones. So this was all for today. Thank you.